Good evening to you this summer. Welcome to the new academic year as well as the new training year. I hope I'm audible. Great, great. Thank you so much for acknowledging my audibility. It really feels good to be taking the first session of the new training and academic session at Patliputra Sahodaya School Complex. Kindly allow me to share my screen and we'll begin with a short prayer. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छामि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. Thank you very much, one and all, for joining me in the prayer. And it's my utmost pleasure to be here back with all of you at Patliputra Sahodaya School Complex. And truly humbled and honored to take this very first academic session with each one of you. Very well known, very well renowned educators of Patliputra Sahodaya School Complex. Before we begin, let me take this time off to thank Dr. Rajiv Ranjan Sinha sir and Insha Rahman ma'am for giving me the opportunity to be here and present this topic, Induction to Training under Domain 3, with all of you brilliant educators of Patliputra Sahodaya School Complex. Of course, let me take this opportunity to thank Sri Tarun Kumar sir, Joint Secretary, CBSC, Head COE Panchkula currently, and former Head COE Patna, for allowing me to be associated with Patliputra Sahodaya School Complex and connecting us and showing us the way that miles apart, we still are one at heart. Thank you very much, sir. And of course, we should not forget to thank somebody who's manning the technicals of this session backstage, behind the scenes, and is connecting you and me together. So thank you very much. Somebody who's hosting this session at PSSC. You're doing a brilliant job connecting us. And of course, welcoming all the participants who are here at this point in time
through the scorching heat in Patna as well as here in Mumbai. We are both here jointly together, trying to understand and unwind through the new training rules that have been established by CBSE on the 1st of April 2025. So just allow me to share my screen and we shall immediately begin with the training. Just give me a moment to share my screen. Yes, I think now it's visible to all. Okay. I would request all the participants who are now joining us uh, to not introduce themselves, but I would love all of you interacting with me. By now, all of us know each other. I know most of the names of the participants who've been joining me through so many trainings. So, अपने आप का introduction, परिचय ना देकर, good evening to all of you one more time who are still joining us. अपना परिचय आप देना बंद करें, ऐसा मेरा आपको नम्र अनुरोध है. मैं नम्र निवेदन कर सकती हूँ आपको, बाकी आपके ऊपर है कि आप सक्रिय रूप से हमसे चैट करेंगे कि केवल अपना इंट्रोडक्शन देते रहेंगे. आप सभी का परिचय देने के लिए धन्यवाद है. बट अब हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं और यदि आप सभी की आज्ञा हो तो. Yes, thank you very much. Today's training, I'm going to not start off directly with the training, but I need all of you to interact with me in the chat box. So I'm keeping my eyes on the chat and you are going to tell me why do we need to do training. So don't tell me that NEP says training करना है, उसके अलावा हमें training क्यों करनी है. हम ट्रेनिंग क्यों करते हैं? Being updated, improve ourselves, very good. Skill development, more information to develop our skills, learning. बहुत अच्छे, very good. Knowledge and learning, very, very good. Improve ourselves. To keep updated. To be efficient, wonderful, for the love of learning. Wonderful, wonderful. Because you're keen on learning, you're keen on gaining more information. Very good. आपके लिए तालियां भी मैं बजा रही हूँ. आप लोगों ने कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है चैट में. वेरी वेल डन. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी, कहानी. एक वुड कटर होता है जो हर दिन जंगल में लकड़ी काटने जाता है. वुड कटर कट्स वुड एवरी डे. और एक दिन उसको पता चलता है कि उसकी जो एक्स होती है, अब उससे वो लकड़ी काट नहीं पा रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ही हैज नॉट शार्पन्ड द एक्स. फिर उसे एक साधु महात्मा आकर बताते हैं कि भैया अपने एक्स को शार्पन करो, धार कर लो चक्कू की, तब जाके आप अच्छी से लकड़ियां काट पाओगे पहले जैसी. और वो काटता है. तो हम यहाँ ट्रेनिंग करने से हमारे एक्स को धार कर रहे हैं, शार्पन कर रहे हैं एक्स को. और इस एक्स को शार्पन करने से हम क्या हो जाएंगे? सक्षम बन जाएंगे. So the entire idea, exactly, Neha Sinha ji, to enhance our knowledge. We are here not only to enhance our knowledge and sharpening our minds and becoming efficient, we are here to be proficient in our knowledge so that we can deliver the best in our classrooms.
We should be proficient enough to be able to transact the curriculum to the highest level. हम अपने आप को एज अ टीचर कितना भी नॉलेज लेके कर ले, वेरी गुड, टू बी मोर क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव इन द क्लासरूम, किसी ने लिखा था अभी, बहुत अच्छी बात है, आपको खूब खूब बधाइयां। तो जैसे हम जानते हैं कि ये क्लासरूम के लिए हम जो सीखते हैं ट्रेनिंग में, हमें उस चीज को अपने क्लासरूम में हमारे विद्यार्थियों के साथ बांटना है। और हम ये भी जानते हैं कि when you give knowledge, when you impart knowledge, you gain knowledge. विद्या प्रदान करने से बढ़ती है, कम नहीं होती। So that is also a kind of training to you. So if you don't use the knowledge you have gained in the training in the classroom, it is of no use to us. ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं हमारी आज के सेशन की ओर। तो ये जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था ना, ये इसी का एक उत्तर भी है कि हम ट्रेनिंग क्यों करते हैं। टू बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन द माइंड, put first things first, sort your priorities and think that every situation is a win-win situation. हम आज यहाँ बैठे हैं तो अपना 1 घंटा व्यर्थ नहीं होने देंगे। हम अपने 1 घंटे को पूर्णतया सफल, सुचारू रूप से, सकारात्मक रूप देकर अपनी कक्षाओं में इस ट्रेनिंग का हार्द लेकर जाएंगे। Seek first to understand and then to be understood. Synergize and sharpen the saw, जिसे हमने अभी देखा, धार करेंगे अपने एक्स की, तभी तो हम जाके अपस्किल होएंगे, सक्षम बनेंगे। वेरी गुड। जितने लोग अभी अभी जुड़े हैं, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, whatever you're comfortable with. बट आज हम ट्रेनिंग में बातें ज्यादा करेंगे, समझदारियां ज्यादा निभाएंगे। एंड आई रियली बिलीव दैट टुडे you will take down some notes. You will take down some notes because now that a new training circular has been established by CBSE, there have been modifications in the training rules. तो अब हमें सोच समझकर ट्रेनिंग करनी है। पहले हम किसी भी ट्रेनिंग में कभी भी चले जाते थे, बैठते थे, नहीं बैठते थे, सर्टिफिकेट लेकर निकल भी जाते थे। तो अब वो सब नहीं चलेगा। अब हमें प्रूव करना है कि हमने ट्रेनिंग की है, और वो प्रूव कहाँ होगा? क्लासरूम में। तो अब हम जो ट्रेनिंग करेंगे एक निश्चित लक्ष्य को लेकर करेंगे। तो हमने ये एनईपी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई 2020 में, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें हमने ये देखा हुआ है कि every teacher needs to complete 50 hours of continuous professional development in a year. And that has to be in different formats. ऐसा नहीं कि बस हमने एक ही ट्रेनिंग पकड़ के बैठ गए, 50 घंटे कर लिए, ऐसा नहीं है। And variety of formats, they could be face to face, they could be in person, they could be meetings, they could be webinars, they could be online, offline, they could be Swayam portal or CBSE 15 क्या ई-विद्या चैनल, वैसे वाली ट्रेनिंग्स भी कर सकते हैं। दीक्षा, निष्ठा, हम बहुत सारी ट्रेनिंग तो करते ही हैं। CIET, कितनी सारी ट्रेनिंग्स हम वैसे भी तो कर ही रहे हैं। Continuous professional development aims to promote lifelong learning. ऐसा नहीं कि आज हमने सीखा और कल भूल गए। Adapt to various student populations. हमारी कक्षाओं में भी तो कितने अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, तो हम सभी के संग मिलकर, सबका साथ सबका विकास। स्टे करंट, हमें भी तो पता चले कि आज CBSE ने कौन सी सर्कुलर, कौन सा ऐसा सर्कुलर, कौन सा नोटिफिकेशन ऐसा आज रात में जारी हुआ जिससे कल अपने पैर के नीचे दुनिया बदल जाएगी।
आज रात को 10-11 बजे सर्कुलर लगता है वेबसाइट पे, कल दुनिया बदल जाती है। क्या हम अपने आप को उतना सक्षम बना पाते हैं ओवरनाइट? इसीलिए तो हम अपस्किल्ड रहते हैं। जैसे आज यहाँ सहोदय में देखे, पाटलिपुत्र सहोदय में हर हफ्ते कितनी ट्रेनिंग होती है। सारे एजुकेटर्स जो नियमित रूप से ट्रेनिंग में जुड़ते हैं, डेफिनेटली दूसरों से सक्षम रहते हैं। So we have to stay current about evolving trends in education and we have to enhance our teaching abilities. तो जो हम ट्रेन करते हैं, अपने आप को अपस्किल करते हैं, वो हमारे क्लासरूम के विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं। ट्रेन होकर हम अपने आप को तो अच्छा बना ही रहे हैं, पर किसके लिए अच्छा बना रहे हैं? Keep the student at the heart or the core of learning. तो ये आया, एनईपी ने हमें ये बताई थी बात 2020 में, और 2022 में एनसीईआरटी ने ये पुस्तक निकाली है, गाइडलाइंस फॉर ट्रेनिंग, गाइडलाइंस फॉर 50 आवर्स ऑफ सीपीडी फॉर टीचर्स, हेड टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स। ये पुस्तक 2022 की एडिशन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट एडिशन अगस्त 2022। NEP came in July 2020, अगस्त 2022 में ये पुस्तक आती है। उसके पहले 2021 में सीबीएसई ने एक सर्कुलर के माध्यम से हमें ये बात बताई है। ये देखिए, अभी जो ये 2025 का सर्कुलर आया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां सीबीएसई ने क्या लिखा है? अफिलिएशन नोटिफिकेशन 16/2021, यानी 2021 में अफिलिएशन यूनिट ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें लिखा है कि आपको 50 घंटे सीपीडी हर साल करनी है बेस्ड ऑन एनईपी। तो विद रेफरेंस टू दैट सर्कुलर, अब उसी सर्कुलर को आगे बढ़ाते हुए ये 1 अप्रैल 2025 का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि ट्रेनिंग यूनिट ने दिया है सीबीएसई से, राइट? पर ये 2021 वाला सर्कुलर क्या था जो एनईपी से निकला था? ये है, ये देखिए, यहाँ डेट लगी है 24/9/2021, नोटिफिकेशन नंबर 16/2021 इश्यूड बाय द अफिलिएशन यूनिट। और ये जो नोटिफिकेशन है वो दिखा रहा है कि अफिलिएशन बायलॉस जो है, अपडेटेड अफिलिएशन बायलॉस, उसके चैप्टर 16 में ट्रेनिंग लिखी है। जो पुराना रूल था 3 days सीबीएसई ट्रेनिंग एंड इन हाउस ट्रेनिंग एट स्कूल लेवल एंड देन सीबीएसई 5 days ट्रेनिंग, ऐसा कुछ जो पहले था, उसको आप अमेंड करके एवरी टीचर, प्रिंसिपल, हेड टीचर, सारे लोग जो स्कूल में पढ़ाते हैं और स्कूल से इन्वॉल्व है, उनको 50 घंटे मैंडेटरी ट्रेनिंग करनी थी। ये हमें 2021 में अफिलिएशन बायलॉज से मैंडेट होकर आया हुआ है कि आपको 50 घंटे ट्रेनिंग करनी ही करनी है। अब इस सर्कुलर द्वारा हमें ये भी बताया गया था कि 25 घंटे आपको सीबीएसई ट्रेनिंग करनी है, 25 घंटे आपको इन हाउस एंड सहोदय ट्रेनिंग करनी है। तो ये सारी बातें तो हम सर्कुलर से ही समझ गए हैं। तो अभी जो ये सर्कुलर आया है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल वाला सर्कुलर, उसमें क्या आया है? ये जो सर्कुलर आया है उसमें ट्रेनिंग के 50 घंटों को हमारे लिए सीबीएसई ने डिवाइड करके दिखाया है कि आप 50 घंटे की ट्रेनिंग कहाँ करोगे, कैसे करोगे। तो ये हो गया 50 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग को 3 हिस्सों में बांट दिया है। 1 अप्रैल 2025 को ये सर्कुलर आया है। सर्कुलर को भी मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने हेडिंग तो दिखाई दिया आपको सर्कुलर का,
पर उसको मैंने ऐसे ब्रेकअप करके दिखाया है। 1 अप्रैल 2025 नोटिफिकेशन है सीबीएसई द्वारा। ट्रेनिंग यूनिट ने ये नोटिफिकेशन हमें दिया है कि अब ट्रेनिंग हमें 3 हिस्सों में बांटकर करनी है और 50 घंटों का पूरा हिसाब दिया है कि ये 50 घंटे आप कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो 50 घंटों में से पहले 12 घंटे जो दिए हैं वो दिखाए हैं कोर वैल्यूज एंड एथिक्स। फिर दिखाए हैं 24 घंटे नॉलेज एंड प्रैक्टिस, ज्ञान और अभ्यास। पहले वाले 12 घंटे मैंने हिंदी नहीं बताया आपको, मूल्य और नैतिकता, मूल मूल्य और नैतिकता, कोर वैल्यूज एंड एथिक्स। सेकंड 24 आवर्स इज नॉलेज एंड प्रैक्टिस विच इज ज्ञान एंड अभ्यास। और तीसरे दिए 14 घंटे, और ये 14 घंटे कहाँ से आए? प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास और प्रगति। अब क्या होता है, इन तीनों डोमेन में सीबीएसई ने बताया है कि आप कितने घंटे सीबीएसई से करेंगे और कितने घंटे आप इन हाउस या सहोदय से करोगे। ठीक है, तो आज जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये वाली जो हमने टॉपिक दिया है इंडक्शन टू ट्रेनिंग, वो हो गया प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 14 घंटों में से 1 घंटा आपका इन हाउस जो सहोदय करवा रहा है, क्योंकि गुरु दक्षता का जो सीबीएसई टॉपिक है वो इस तीसरे डोमेन में आ रहा है। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं सीबीएसई हर डोमेन में हमसे क्या करवा रहा है। अब ये जो हमारी पहली डोमेन थी, राइट, कोर वैल्यूज एंड एथिक्स, मूल मूल्य और नैतिकता, उसमें क्या किया है, 12 घंटों को 6-6 घंटों के स्लॉट में डिवाइड किया है। 6 घंटे दे दिए हैं सीबीएसई ऑफलाइन ट्रेनिंग। सीबीएसई ऑफलाइन ट्रेनिंग जो हम सीबीएसई रिसोर्स पर्सन आते हैं स्कूल में, सीबीएसई कंडक्ट करता है, या हम किसी वेन्यू स्कूल में जाते हैं, वो वाली ट्रेनिंग जो है उसके हो गए 6 आवर्स। और वो हर ट्रेनिंग के नहीं, टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक्स में से ही एक ट्रेनिंग करेंगे हम, तो हमें 6 आवर्स मिलेंगे। और जो दूसरे 6 आवर्स दिए हैं, 6 घंटे, वो इन हाउस सहोदय ट्रेनिंग के लिए दिए हैं। ओके, ये जो बोल्ड में है उसका आप मत देखिए, क्योंकि वो एक दूसरा इन हाउस भी हम स्लेट कर चुके हैं, उनके लिए मैंने ये लिखा है। बट जो 6 आवर्स का ब्रेकअप है वो आपके लिए है। फिर ये जो है नॉलेज एंड प्रैक्टिस, नॉलेज एंड प्रैक्टिस, उसमें सीबीएसई ऑफलाइन के 16 घंटे दिए हैं आपको। सीबीएसई ऑफलाइन के 16 घंटे। आपको पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, वो बोल्ड मैंने अपने स्कूल के लिए किया है। अपने स्कूल में भी मैं ये ट्रेनिंग ले रही हूँ, तो हमारे ट्रेनिंग कैलेंडर के हिसाब से मैंने वो नोटिफिकेशन डाला है बोल्ड में, फॉर माय ओन स्कूल इन मुंबई। तो मेरे टीचर्स को भी ध्यान रखने के लिए मैंने वहां टैग किया है बोल्ड में। तो नॉलेज एंड प्रैक्टिस को हमने सीबीएसई द्वारा 16 आवर्स ऑफलाइन करवाने हैं। तो अब जो नॉलेज एंड प्रैक्टिस है, अगर हम देखते हैं तो अगर हम 2 दिन की सीबीएसई ट्रेनिंग करते हैं तो वो 12 घंटे होते हैं। फिर भी हमें 4 घंटे ऑनलाइन या ऑफलाइन सीबीएसई के करने हैं, और उनके टॉपिक्स भी दिए गए हैं। और फिर ये लोग बोल रहे हैं 24 में से 16 निकल गए, बच गए 8। अब 8 घंटों में आपको सहोदय या इन हाउस ट्रेनिंग्स करवानी है, और वो टॉपिक भी दे रखे हैं। फिर आते हैं आखिरी 14 घंटों पर। यहाँ उन्होंने बहुत मजेदार चीजें बताई है।
यहाँ क्या कर दिया है, सीबीएसई ऑफलाइन ट्रेनिंग को केवल 3 घंटे दिए हैं। ओनली 3 hours सीबीएसई ऑफलाइन ट्रेनिंग एंड इन हाउस एंड सहोदय ट्रेनिंग को पकड़ के 11 घंटे दिखाए हैं। अब ये बड़ी मजेदार चीज है। इसमें क्या हो जाता है, आप जो सीबीएसई की ऑफिशियल ड्यूटीज करते हैं, जैसे अभी हम लोग सब परीक्षा के बाद इवैल्यूएशन पर निकल गए थे, बहुत लोग इवैल्यूएशन ड्यूटी पर थे। आप में से भी बहुत सारे लोग इवैल्यूएशन ड्यूटी के लिए गए होंगे। इवैल्यूएशन ड्यूटी को 6 घंटे इन हाउस में गिन लिया है सीबीएसई ने। आप सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई हमारे लिए। हम जो 10 दिन इवैल्यूएशन करते हैं उसको सीबीएसई ने हमें 6 घंटे इवैल्यूएशन ड्यूटी का गिन लिया है इन हाउस सहोदय कैटेगरी में, राइट। एंड सीबीएसई के अपने तो 3 ही घंटे पकड़े, बट दे हैव सेड इन हाउस इन दिस सेक्टर विल बी 11 hours। उसमें से 6 घंटे तो यदि आप इवैल्यूएशन के लिए गए तो निकल गए, बाकी आपको 5 घंटे ढूंढने हैं। तो ये देखिए, ये जो पहला डोमेन है, मूल मूल्य एंड वैल्यूज, नैतिकता, राइट। अब इस वाले में से व्हाट दे हैव सेड, 6 hours सीबीएसई ऑफलाइन एंड 6 hours सहोदय एंड इन हाउस, कुड बी ऑनलाइन कुड बी ऑफलाइन। अब जो आप सीबीएसई ट्रेनिंग करेंगे, देयर इज अ बिग कैच। आप जो सीबीएसई ट्रेनिंग करोगे हैज टू बी रजिस्टर्ड थ्रू द स्कूल यूजिंग ओएसएस आईडी ऑफ द टीचर्स, और स्कूल ही आपको रजिस्टर करेगी, आप अपने इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन आईडी से नहीं करोगे। यू हैव टू यूज द ओएसएस रजिस्ट्रेशन फॉर logging in into the training portal. So the school will register you into the training portal using OSS. Second thing they are saying, आप जो in-house and सहोदय ट्रेनिंग करोगे उसको भी आप रेगुलरली ओएसएस पोर्टल पे अपलोड करोगे, दैट इस टीचर ने ये ट्रेनिंग की है हमारी पाठशाला से। So every training you are doing is being regularly uploaded on the training portal, on the OSS portal. And CBSE is saying whether you are actually doing the training. If CBSE thinks that आपने गलत अपलोड कर दिया है तो आप पर कार्यवाही हो सकती है। ये तो अभी पहला ही नोटिफिकेशन आया है, अभी इसके बाद होप है कि बहुत सारी नोटिफिकेशन, बहुत सारी और डिटेल क्लैरिटीज भी आएंगी। बट ये आप सोच समझ कर चलिए कि आप जो ट्रेनिंग करते हैं उसका आपको ओएसएस पोर्टल पे अपलोडिंग करना है। ऐसा ये नोटिफिकेशन में लिखा है, ये मैं कहीं से नहीं पढ़ रही हूँ। ये जो मैंने 1 अप्रैल का नोटिफिकेशन आपको पहले ही दिखा दिया था कि ये नया आया है, उसमें ये लिखा है, and update the training records on OSS portal. Every time you have to do it. और ये कौन से टॉपिक्स है डोमेन 1 में, अडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि 2 दिन का है, आपको 12 घंटे मिलेंगे पर गिने जाएंगे 6 घंटे। एथिक्स एंड इंटेग्रिटी 12 घंटे का ट्रेनिंग है, आपको गिनेंगे 6 घंटे। जेंडर सेंसिटिविटी 1 day ट्रेनिंग 6 hours। Inclusive education 2 day training 12 hours counted as 6 hours. Life skills advanced 1 day 6 hours. Life skill basic 1 day 6 hours. Promoting mental health and wellness among students 1 day 6 hours. School health and wellness 2 days 12 hours will be counted as 6 hours. Value education 1 day 6 hours. These are the CBSE topics you can do training on the CBSE offline training portal through OSS.
And on the same topics, all topics similar to this annexure, you can do in-house trainings of 6 hours and upload on Oasis. In-house or Sahoday. That is always open, okay? Sahoday से कीजिए या schools जो in-house करवाती हैं, in-house training. जैसे भी आप करते हैं, जैसे ये पाटलिपुत्र सहोदय तो एक रियली नोबल काम कर रहा है आप सबको एक प्लेटफॉर्म देकर कि आप अपनी ट्रेनिंग आवर्स कंप्लीट कीजिए. So even when your STNCs are planning the training, you have to keep in mind कि domain 1 मूल्य और नैतिकता, इस पर केवल 6 घंटे ऑफलाइन देना है, 6 घंटे सहोदय एंड इन हाउस देना है. ये हमें ध्यान रख के चलना है. आई होप यू आर मेकिंग योर नोट्स ऑन दिस, बिकॉज अगर इसमें आप गड़बड़ा गए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको. आप ट्रेनिंग करते ही जाओगे और होगा नहीं कुछ. ठीक है, फिर ये देखिए जो सेकंड डोमेन है अपना, सेकंड डोमेन, उसमें क्या हो रहा है, 16 आवर्स सीबीएसई करवाना है, 16 घंटे सीबीएसई. उन 16 घंटों में से भी आपको 12 घंटे सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग करवानी है. और एनेक्सर जो 2 हमने नीचे अटैच किया हुआ है, उसमें से आप कितनी भी और ट्रेनिंग करवा के आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन सीबीएसई के 16 घंटे करवा सकते हैं. साथ में इन हाउस एंड सहोदय वाले हमारे पास 8 आवर्स ट्रेनिंग है, 6 आवर्स ऑफलाइन, 2 आवर्स ऑनलाइन. ऑफलाइन कैसे भी जो स्कूल करवा रही है, स्कूल और ग्रुप ऑफ स्कूल्स, इसी एनेक्सचर के टॉपिक को लेकर आपको चलना है और ओएसिस पर अपलोड करना है. It is a good 8-hour training that you have to do on the same topics. Right? Now, in these 8 hours, what are you doing? You have school libraries in domain 2. School libraries, active learning, art integration, competency-based assessment, generic, critical and creative thinking, experiential learning, learning outcomes and pedagogy, storytelling as a pedagogy, strengthening assessment and evaluation practices. ये टॉपिक्स हैं आपके सामने, और टॉपिक्स भी मैं दिखा देती हूँ. हम ये सर्कुलर एक बार आज पढ़ रहे हैं, पर ये समझकर पढ़ रहे हैं कि 16 घंटे हमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक, 12 घंटे और इसी एनेक्स से बाकी के 4 टॉपिक्स में से 4 घंटे करने हैं. ये मैथमेटिक्स का खेल है और कुछ भी नहीं है, समझ के करनी है ट्रेनिंग. फिर सब्जेक्ट ट्रेनिंग्स देके अकाउंटेंसी फॉर सीनियर सेकेंडरी क्लासेस, बिजनेस स्टडीज सीनियर सेकेंडरी, इकोनॉमिक्स सीनियर सेकेंडरी, इंग्लिश कोर्स सीनियर सेकेंडरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, ये सब सीनियर सेकेंडरी क्लासेस. हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी भी है आगे नीचे, सोशल साइंस, तमिल, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, competency based assessment English, competency based assessment social science, Kannada, Malayalam, Punjabi, physical education, Hindi B course मैंने बता ही दिया था, संस्कृत, educating parents about education. ये सारे टॉपिक्स हमें एनेक्सचर 2 में दिए गए हैं. साथ में हमें क्या दिया गया है, स्टेम एजुकेशन के टॉपिक्स इसी एनेक्सचर में दिए हैं. स्टेम ट्रेनिंग, बायोलॉजी, केमिस्ट्री दोनों सीनियर सेकेंडरी के हो गए, ईवीएस फॉर एलिमेंट्री क्लासेस, फिजिक्स दे दिया सीनियर सेकेंडरी, पाइथन सीनियर सेकेंडरी, सीनियर क्लासेस पाइथन बेसिक,
मैथ्स सेकेंडरी, साइंस सेकेंडरी, मैथ्स एलिमेंट्री, साइंस एलिमेंट्री, जॉयफुल मैथमेटिक्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, मैथमेटिक्स भी दिया है, साइंस भी दिया है, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट जो वैसे तो आता है सोशल साइंस में बट इन्होंने यहाँ पर स्टेम में दे दिया है, एनवायरमेंट एजुकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द क्लासरूम। तो अब हमारे पास क्या हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स जमा हो गए, स्टेम टॉपिक्स, सब्जेक्ट बेस्ड टॉपिक्स एंड ओपन टॉपिक्स। और सर्कुलर में क्या लिखा है, आपको 12 घंटे सब्जेक्ट करना है, राइट, 4 घंटे अदर टॉपिक्स करना है सीबीएसई एंड 8 आवर्स ऑनलाइन ऑफलाइन करके आपको इन हाउस इसी एनेक्सर के टॉपिक्स पे आधारित ट्रेनिंग करनी है। प्लीज टेक डाउन दिस एज एन इम्पोर्टेंट नोट, अगर आप इसमें गलती कर गए तो आपको हर बार ओएसएस से प्रॉब्लम होगी। अब एक बड़ी चौंकाने वाली चीज जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की हुई है कि इन हाउस और सहोदय में इन्होंने क्या कर दिया है, सीआईटी, दीक्षा, निष्ठा, एकलव्य स्टेम 30-30 जो एकलव्य करते थे हम, ये सब हो चुके हैं इन हाउस। Unless there is a CBSE circular saying it will be considered as CBSE offline or online training, it will all go as in-house. और अब जैसे जो टॉपिक आता है दीक्षा, निष्ठा, सीआईटी, एकलव्य में, एकलव्य तो वैसे भी स्टेम है तो नॉलेज एंड प्रैक्टिस में जाएगा, बट सीआईटी, दीक्षा, निष्ठा में जो टॉपिक्स आते हैं उनको आपको डोमेन 1, डोमेन 2 और डोमेन 3 से मिलाकर देखना है कि ये कौन सी डोमेन में जा रही है ट्रेनिंग, उसके हिसाब से आपको करना है, ना कि 50 आवर्स कंप्लीट करने के लिए चलो हम करते ही रहते हैं। तो ट्रेनिंग में जब हम रजिस्टर करेंगे तो भी हम सोच समझ कर करेंगे, because now everything is not counting in 50 hours. The third domain they are giving us, professional growth and development. जहाँ CBSE offline programs are only 3 hours. और वो ओएसिस द्वारा आपको रजिस्टर करने हैं, और बाकी इन हाउस सहोदय में 11 घंटे दिए हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप यदि इवैल्यूएशन ड्यूटी एज एग्जामिनर, एएचई, एचई वगैरह थे असाइंड बाय आरओ, देन यू विल गेट 6 आवर्स। यदि आपने सीबीएसई की मार्किंग स्कीम, एसक्यूपी, आइटम राइटिंग, सैंपल क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक, कोई नया करिकुलम रिव्यू किया है, कंटेंट रिव्यू किया है, रिसोर्स मटेरियल बनाया है सीबीएसई के लिए, आप यदि सीबीएसई द्वारा असाइंड प्रैक्टिकल एग्जामिनर बने हैं ग्रेड 12 वाली एग्जाम में, तो आपको 3 घंटे और मिलते हैं। इफ यू आर डूइंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन द क्लासरूम, आप कोई डिपार्टमेंट हेड है जहां आप दूसरे टीचर्स को, डिपार्टमेंट के शिक्षकों को गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं, नए रिसोर्स पर्सन बनवाते हैं सीबीएसई के लिए, आप किसी रिफ्लेक्टिव जर्नल में लिखते हैं, आप ब्लॉग्स ऑन टीचिंग एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, यदि आप ऑनलाइन एजुकेशनल डिस्कशंस में पैनलिस्ट के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं, आपका कोई पेपर पब्लिश हो जाता है, then you will get 2 hours of training. If you are a resource person for CBSE और आप ऑफलाइन ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं तो आपको टोटल 3 आवर्स ऑफ योर ओन ट्रेनिंग मिलता है टोटली। आप चाहे कितने भी घंटे कर ले ट्रेनिंग के,
यदि आप DDPM ई विद्या चैनल पे CBSE 15 चैनल जो है वहां पर सेशंस देखते हैं, ऑनलाइन एकलव्य स्टेम वगैरह करते हैं, तो वो 3 आवर्स गिने जाएंगे। तो आप 30 आवर्स एकलव्य कर रहे हैं, आपके गिने जाएंगे 3 आवर्स। ये भी आप सोच लीजिए। आप टीचिंग में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करके पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, तो आपको 2 घंटे की ट्रेनिंग मिलती है। आप CBSE टीचर्स की एनुअल कॉन्फ्रेंस है, अगर उसमें जा रहे हैं तो आपको 3 घंटे मिलेंगे। आप अगर सहोदय की नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, जो CBSE की एक ही बार होती है, उसमें जाकर पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको 3 घंटे और मिलेंगे। बट टोटल नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेशन इज 3 आवर्स। अब आप ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे घंटे दिए हैं। एग्जामिनेशन ड्यूटी 6 आवर्स, 3 आवर्स ये करिकुलम प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह 9 आवर्स, रिसर्च प्रोजेक्ट मेंटरिंग 2 घंटे 11 घंटे, रिसोर्स पर्सन बनने के 3 घंटे 14 हो गए, एकलव्य एंड PME विद्या चैनल देखने के लिए 3 घंटे और, मतलब कितने, 17, टेक्नोलॉजी के 2 घंटे 19, एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 घंटे, यानी 21 hours they are showing you here, but they are giving you a notification below it that only 11 hours will be considered from here. आप सारे काम कर रहे होंगे पर केवल 11 घंटे ही गिने जाएंगे। Not only that, but the school will maintain detailed records for verification, क्योंकि जैसे ही ये OSS में अपलोड होगा, CBSE हर चीज का आपका अपॉइंटमेंट मांगेगा। For everything you will need an appointment letter to prove on OSS that you are doing it. अपॉइंटमेंट लेटर, रिलीविंग लेटर एंड रीजॉइनिंग लेटर, आपको ये 3 लेटर दिखाने ही दिखाने पड़ेंगे फॉर दीज कैटेगरी ऑफ ट्रेनिंग्स। एक सेफ्टी के लिए मैं तो कहती हूँ कि हर किसी ने, जो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए जहां हम दिख रहे हो। जैसे अभी मैं दिख रही हूँ आप लोगों को, अगर मैं उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ कि मैं ये ट्रेनिंग कंडक्ट कर रही हूँ और इसकी वीडियो मैं प्रोवाइड कर देती हूँ कि मैंने ये ट्रेनिंग अटेंड की फॉर एग्जाम्पल, तो 1 घंटा ये जैसे जो आप लोग अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको शायद 1 घंटा मिल सकता है एज एन एविडेंस। सर्टिफिकेट तो मिलना ही है, तो आपको सर्टिफिकेट भी देना है कि आपने ट्रेनिंग अटेंड की। बहुत सारी ट्रेनिंग्स में हम देखते हैं असेसमेंट होता है, अटेंडेंस फॉर्म होता है। अब ये सारे पेपर वर्क हमें डिटेल से करके हर एक ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट इश्यू करनी है। ट्रेनिंग में कोई चीटिंग नहीं करनी है, मन लगाकर 1 घंटा हमें पढ़ना है, या जितने भी घंटे की आप ट्रेनिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको अभी हर ट्रेनिंग को अपनी कक्षाओं में ले जाना है। अब हम नाम की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग करके अपने आप को सक्षम अपने विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं, राइट। अब हम जा रहे हैं एक और प्लेस में कि इतनी सारी चीजों का आइडिया CBSE ने दिया कहाँ से। तो मैंने आपको बिगिनिंग में वो पुस्तक दिखाई थी जो NCERT ने 2022 में दी थी, उसमें ये सारे सुझाव दिए हैं। ये देखिए, उस पुस्तक में ही लिखा है ऑनलाइन मोड एंड डिस्टेंस मोड की कौन सी ट्रेनिंग्स है, निष्ठा, दीक्षा, और ये सारी trainings will now be considered as 4-hour trainings unless CBSE issues on circular saying कि इतने घंटे की ट्रेनिंग है, but otherwise they will be considered as 4 hours. फिर जो आगे के सजेशंस हैं ये भी हमें इसी बुक से मिलते हैं। पेपर पब्लिकेशन इन recognized journals and magazines, not any random. तो लोकल एंड रीजनल लेवल पेपर पब्लिकेशन ये NCERT ने सजेस्ट किया है, CBSE ने तब अपनाया नहीं था, अब जाके 2025 में CBSE ने अपनाया है इसे, एंड CBSE has given in black and white in writing कि हम क्या करेंगे तो हमें कितने घंटे मिलेंगे, तो हमें उतना ही करना है।
So paper publication, then national level paper publication, international level. So this is suggested by NCERT. What has CBSE considered? कितने घंटों का हम पेपर पब्लिकेशन ले सकते हैं? ये देखिए, पेपर पब्लिकेशन 2 hours, चाहे कहीं भी कीजिए. Content development and other academic performing activities. NCERT has suggested आप मॉड्यूल बनाइए, ये कीजिए, वो कीजिए. एक्शन रिसर्च के प्रोजेक्ट्स को क्लासरूम में ले जाइए एज रिसर्च प्रोजेक्ट्स. फील्ड विजिट्स इन इनोवेटिव स्कूल्स, ये NCERT ने सजेस्ट किया है. लाइव सेशंस ऑन PM ई-विद्या. अब ये जो आप करते हैं, इसमें से कुछ चीजों को CBSE ने एक्सेप्ट करके सर्कुलर में डाल दिया है. Whatever has been accepted and given and counted by CBSE is what you are doing. NCERT has given a lot of suggestions and a very, very good suggestions, but CBSE has accepted some. Then look at this. I have taken down what NCERT has suggested. Expert resource person in face-to-face platform should get 3 hours. That CBSE has accepted. पेपर सेटिंग अगर आप करते हो तो आधा दिन आपका जा ही रहा है, बट CBSE ने वो नहीं दिया है. CBSE पेपर सेटिंग करोगे, CBSE SQ पे बनाओगे, CBSE क्वेश्चन बैंक बनाओगे, तब आपको हाफ डे मिलेगा. और यदि आप एग्जामिनर AHE वगैरह हैं तो आपको 6 घंटे मिल ही रहे हैं. So you should be very, very thankful that the new circular has come in good light and it's going to bring a lot of joy to us. But in Annexure 3, ये जो Domain 3 की जो trainings है, इनमें कौन सी trainings हमें 3 घंटे की offline training में दी गई है? National Curriculum Framework, NCF-SE, NCF-FS, Theory of Knowledge, National Education Policy, Happy Classrooms, Stress Management, Classroom Management. अब ये मजा देखिए, 12 घंटे की ट्रेनिंग है, गिने जाएंगे कितने? 3 hours. इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम गुरु दक्षता करते हैं, तो 2 दिन की ऑफलाइन ट्रेनिंग है CBSE की, गिने जाएंगे कितने? 3 घंटे. और इसी के हम अगर सहोदय ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे आज हम इंडक्शन कर रहे हैं टू दिस ट्रेनिंग सर्क्यूलर एंड टू द न्यू ट्रेनिंग रूल्स, उसका हम 1 पूरा घंटा गिन पा रहे हैं. यदि आपके पास CBSE ड्यूटीज के 11 घंटे नहीं निकल रहे, तो आप ऐसे भी इन टॉपिक्स की ट्रेनिंग करके अपने 11 घंटे बना सकते हैं. यानी यदि आप CBSE इवैल्यूएशन ड्यूटी के 6 घंटे नहीं ले पा रहे हैं, आपका वार्ड अपेयर कर रहा था और आपने ड्यूटी नहीं की इस साल, या आपको आई नहीं ड्यूटी और आपने नहीं की, कोई बात नहीं. आप नीचे से ये एनेक्चर्स से इन हाउस ट्रेनिंग्स कर करके अपने पूरे 11 घंटे कर सकते हैं. Leading transformations is only for principals, so most COEs don't allow leading transformations to be done offline for others. But आपको डेफिनेटली इन हाउस ट्रेनिंग में आप लीडरशिप ट्रेनिंग्स कर सकते हैं. एंड ये एकेडमिक ओरिएंटेड असाइनमेंट्स की तो हमने बात कर ही ली, जैसे CBSE ने इवैल्यूएशन को 6 hours दिए, बाकी के सारे CBSE वर्क्स के जो 11 घंटे दिखाए हैं वो आप कर सकते हैं. तो इतने में मुझे लगता है हमें काफी सारी गाइडलाइन मिल चुकी है कि हम कैसे एक ट्रेनिंग कर पाएंगे. I think the guidelines are very, very clear to us by now. Just for a quick recap, core values and ethics, मूल मूल्य और नैतिकता के 12 घंटे हैं. 6 hours CBSE, 6 hours सहोदय and in-house. Knowledge and practice, 24 hours, 16 hours CBSE, and in-house is 8 hours in-house or sahoday. From the 16 hours CBSE, 12 hours subject training, 4 hours from annexure to other topics.
Professional growth and development is 14 hours. In professional growth and development, only 3 hours are CBSE, 11 hours are either in-house and Sahoday from Annexure 3, Domain 3 topics, or if you are on official CBSE duty with a letter from CBSE as an evidence, then you are getting different parts based on what duty you are doing. अच्छा, आगे बढ़कर और भी खुश खबर है आपके लिए मेरे पास। ये भी हमने उस पुस्तक से लिए है कि हम जो देख रहे हैं ना आजकल सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल पे हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी 1.5 घंटे की हो गई है, 90 मिनट्स। तो 1.5 घंटे का ये प्लान कहाँ से आया इनका? तो 1.5 घंटे का ये जो प्लान है ना, वो 1 hour 30 minute ड्यूरेशन यूजीसी से लिया गया है। यूजीसी ने ये बनाया है कि 1.5 hours इज द बेस्ट टाइम टू टेक अ ट्रेनिंग। तो 90 मिनट का ये जो पूरा आया है वो यूजीसी से आया है और ये वो एनसीईआरटी सजेशंस में दिया गया था। So even if you see your daily schedule of offline trainings, you can see 9:30 to 5:30 जो हमें ट्रेनिंग का एक स्केड्यूल बनाकर ऑफलाइन के लिए देते हैं, 90 मिनट सेशन के बाद एक ब्रेक देते हैं, and they make only 4 sessions of 90 minutes in a day, and in 2 days you are doing only 8 sessions of training, right, with ample break. तो ये यूजीसी ने सजेस्ट किया है, and NCERT has also said that it is okay अगर आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी है कि आप 9:30 to 5:30 ना कर सके तो आप उसको जल्दी स्टार्ट करके जल्दी भी खत्म कर सकते हैं। और यदि आपके स्टेट में जैसे अंधेरा जल्दी हो जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, आप जल्दी स्टार्ट कीजिए, जल्दी खत्म कीजिए, बट द टाइम गैप शुड बी दिस ओनली 90 minute sessions with a break. And if you are in a place where the sun rises late, then you go to a later time. But your session has to be 6 hours like this. यदि आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास एनसीईआरटी की इतनी सारी रिसोर्सेज है जो एनसीईआरटी ने अपनी पुस्तक में ही दे रखी है। You can definitely read through these resources. MOE and the government and NCERT have given us all of these resources to go through. आप प्रेम से इनको रीड कर सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो एनसीईआरटी से ये बुक डाउनलोड कर लीजिए और आपको ये सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे। Finally, the last and the most important thing, schools must adhere mandatorily to this notification in terms of trainings. अफिलिएशन बायलॉज के इस क्लॉज को वायलेट करने के लिए स्कूल को पेनल्टी होगी। It is mandatory that teachers and principals attend these trainings in this way. The school has to sponsor these trainings. And the best part, no salary will be deducted to attend training either as a participant or as a trainer. It will not be a leave or a leave without pay, but it will be on duty as per NEP and affiliation bylaws and clause के साथ दिया है, right? And then they say schools are requested to follow this for compliance. And Director Training, Dr. Manoj Srivastava, has signed the circular on 1st of April 2025. So इसी के साथ आपको कुछ और पूछना करना हो, आपको लग रहा हो कि आपने कुछ और हमें बताना है, तो आप जरूर प्रेम से बताइए। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है। आई विश आप अपने अपने प्रश्न चैट बॉक्स में दे। आई विल बी हैप्पी टू गो थ्रू द चैट एंड आंसर योर क्वेरीज। I am more than happy to answer your queries at all points in time. मुझे तो बड़ी खुशी होती है, साथ साथ में आप अच्छे अच्छे फीडबैक मुझे दे ही रहे हैं।
आप सभी का खूब खूब धन्यवाद. I hope you have enjoyed today's session. I hope I was able to provide you insight into this new and complex training circular. I hope that all those people who had raised their hands were able to get their doubts sorted in the training only. यदि ना हो पाया हो तो please अपने doubt पूछ लीजिए. I would be happy to answer your queries. Before we end, it is time to say thank you one more time to Dr. Rajiv Ranjan Sinha sir and Insha Rahman ma'am, who brought me here to Patliputra Sahodaya School Complex to interact with all of you. And of course, I need to thank somebody who's manning this session at PSSC. I do not know the name of the person. सर कभी अपना नाम भी हमें भेज दीजिएगा तो हम आपको नाम से धन्यवाद बताएंगे. ये जो सर जो बैठे हैं जो इस सेशन की लिंक बनाते हैं, आप सबकी सर्टिफिकेट्स भी शायद बनाते हैं, आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड भी रखते हैं, आपका ये सेशन यूट्यूब पर भी लगाते हैं, हमसे संपर्क भी करवाकर हमारे डेट्स लेकर टाइम लेकर आपको सबको इकट्ठा करते हैं. ऐसे एक महाशय जो आज पर्दे के पीछे हमेशा रहकर भी बहुत सुंदर से काम करते हैं. थैंक यू सो मच सर. और yes, I would be happy to thank Shri Tarun Kumar sir, Joint Secretary CBSE, who is currently heading COE Panchkula and has been the former head at COE Patna, for connecting me with the Patliputra Sahodaya School Complex and giving me and having faith in me to have resource person skills enough to be training wonderful educators in Patna region. Thank you so much, sir. And of course, all of you brilliant participants. I had seen around 2,400 participants. I don't know if you were more in between the sessions, but thank you so much for being here with me. Your honest feedback always matters. I look forward to hearing for your feedback. And I truly hope you've made your notes and done the mathematics of कौन सी ट्रेनिंग हम कहाँ से करेंगे, कितने घंटे हमें मिलेंगे. मैंने पूरा आपको दिखा दिया है. अभी आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज एंड लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटीज की बात है कि आप कौन सी ट्रेनिंग कहाँ से करेंगे. So thank you very much, teachers, educators, principals. आप अभी भी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आई एम स्टिल ओपन टू क्वेश्चन, कमेंट एंड फीडबैक. जो आपका मैं बड़ा अच्छा फीडबैक पढ़कर खुश हो जाती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कि इतना हकीकत में बहुत अच्छा रहा मेरा सेशन. और भी अच्छी बातें आ रही हैं इस चैट में. थैंक यू सो मच. आपकी इतनी प्रशंसा पढ़ के मुझे बहुत ये लगता है. किसी ने अभी एक प्रश्न भी पूछा था. I just saw one question in the chat. Just a minute. ये अभी एक प्रश्न आया था पर ये बहुत तेज चली गई चैट. बहुत लोग एक साथ प्रश्न कुछ तो लिख रहे हैं. किसी ने अभी एक प्रश्न पूछा था ना, कुछ इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट से ट्रेनिंग करनी है, ऐसा ही कुछ था ना. आपको OSS ID से ही ट्रेनिंग करनी है, ये आप ध्यान रखिए. दिस Paramjeet Kaur ji, this session is always uploaded on the Patliputra Sahodaya School Complex YouTube channel. You may request the Sahodaya for the link and you will probably be given the link. I'm sure they must be giving it to the schools because now every school will have to upload it on OSS. And all CBSE trainings you have to do through the OSS login only. तो ये ध्यान में रखिएगा, अपनी स्कूल्स में बता दीजिएगा. यदि आपके STNCs यहाँ नहीं है तो उनका संपर्क करके उन्हें बताइएगा
कि ट्रेनिंग हैज टू बी डन थ्रू ओएसएस रजिस्ट्रेशन। तो आप ओएसएस रजिस्ट्रेशन से स्कूल आपको रजिस्टर कर देगा, तभी आप ट्रेनिंग करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप इंडिविजुअल आईडी से करोगे तो वो गिनी नहीं जाएगी। नवोदय ट्रेनिंग आप इंडिविजुअल आईडी से कर सकते हैं, पर उसको ओएसएस पोर्टल में अपलोड करना ही करना है। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। आप सभी की आज्ञा लेकर आज के इस सेशन को विराम देते हैं और आप सभी को रामनवमी की खूब खूब हार्दिक बधाइयाँ। चैत्री नवरात्रि भी चल रहे हैं आपके, तो आपको चैत्री नवरात्रि के भी खूब खूब बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। कल रामनवमी व्रत है, उत्सव है, आपको रामनवमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ और हैप्पी एकेडमिक एंड ट्रेनिंग ईयर अहेड। इसी के साथ थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, नमस्कार। And with your kind permission, I'll take your leave. Goodbye.